right? So during cyclone also a similar thing happens. Now the water vapor, which are nothing but clouds, they get converted to liquid water during thunderstorm, right? As I said, the thunderstorm is accompanied by rainfall. So during rainfall, the clouds, that is the water vapor, gets converted into liquid water. So as per our simple concept, that during this conversion, what should happen? Heat should be released, and that also happens here. So in nature also heat is released. So where is this heat released? So this heat is released in the atmosphere. So when this heat is released in the atmosphere, what is the heat doing? The heat will warm up the air in the atmosphere, correct? So when you are releasing heat in the atmosphere, the air in the atmosphere will get heated up. And what happens when air gets heated up? So the air gets heated up. And when the air heats up, it expands. It becomes lighter, and therefore the warm air will start rising up. So the air is warmed up and that warm air rises up. Now as the warm air rises up, what's happening? There is a movement of air involved, right? So that is nothing but wind. So if the warm air is rising up, as a result, pressure will decrease, because whenever there is movement of air, that means initially the air was not moving, now the air is moving. So basically the wind speed increased. So it has to be accompanied by a decrease in pressure. So as the warm air rises up, a low pressure area is formed. And due to this pressure drop, what happens? So basically now you have a low pressure area at one point, and everywhere else is high pressure area. So what will happen? All the air from the high pressure area will try to move towards the low pressure area. So more and more air will rush towards the low pressure area. Right? So let's see if this is the low pressure area that is being created. So air from all the high pressure areas will try to come towards this low pressure area, because I said air always moves from a region of higher pressure towards a region of lower pressure. So as a result, more and more cool air will converge towards the center. And what is this center? Center is nothing but the low pressure area. That becomes a kind of center. So all the air starts coming near it. So that's how it happens. So if you look at it, this is how it looks. This is the side view of the cyclone. But when you have a look at it from the top, you will see that there is a center. So inside is like a hollow, and that hollow inside is nothing but the low pressure area. And around that low pressure area, you have these winds which are like in a spiral fashion, in a rotating fashion. They are moving with very high speeds. So this is how a cyclone is formed. So the net result of this entire process is that high speed winds revolve around the low pressure center. So high speed winds revolving around the low pressure center. So that's the cyclone. So you understood it. It's nothing. It is not a special phenomenon that happened. Same thunderstorms. So when during thunderstorms, if there is too much of rainfall. So are you all getting it? Exactly cyclone में होता क्या? The warm air expands, it rises up, creating a low pressure area. ये सबने जान लिया, बहुत अच्छे से जान लिया. इसी पे हम लोगों ने लास्ट पूरा भी डिस्कशन ही करा. Now when the cold air from all the directions would start moving towards that low pressure area, तो होगा क्या? वो वहाँ रिवॉल्व करने लगे. सारे डायरेक्शन से आ रहे ना, तो they start revolving in that place, and that is how a cyclone is created. तो हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा था, we already studied कि the eye of the cyclone is a very normal area. वहाँ पे बहुत हवा भी नहीं होती है, बहुत हाई स्पीड विंड्स भी नहीं होती है. might also see sunshine also, but उसके आसपास का जो एरिया है, the area surrounding the eye of the cyclone, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे there are very high speed winds, और उसकी रेंज क्या पढ़ रखी थी हम लोगों ने? कुछ 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं, समझ लो, उस एरिया का चक्कर लगा रही. They are surrounding that, they are rotating around that center. ठीक है, यही हो रहा है साइक्लोन. And when that much volume of air starts moving at the same time, तो फिर आप समझ सकते हैं the intensity of a cyclone.
So when there is so much of rainfall, the more rainfall means more conversion of water vapor to liquid water. So more heat is released. So more air is warmed up. So warm air will rise up and low pressure area will be created. And creation of low pressure area is an indication of the start of cyclone. So that's how cyclone happens. So here you can see the arrow indicates the central part, which is the low pressure area. So this is about the formation of a cyclone. So when you look at it from the top view, so you can see the center here, and this center is the low pressure area. And just immediately after the low pressure area, you have that region where there are extremely fast moving winds which are rotating around the center. So here you can see a picture of a real cyclone, and this is how a cyclone. ठीक है, ये दिया है. अब अगर कभी साइक्लोन आए, ठीक है, सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड डूम अर्थ लाइव. उसमें आपको इंडिया के ऊपर या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के ऊपर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्काईज राइट नाउ, वो एकदम साफ साफ दिख जाएगा. ठीक है. So I went through this website when during the time of that cyclone Yas. तो उसमें एकदम प्रॉपर ऐसा ही दिख रहा है. कहाँ पे? द बे ऑफ बंगाल रीजन. वहां पे एकदम ऐसा ही दिख रहा है. लेट मी शो यू दैट वेबसाइट. इनफैक्ट बता रहे ये जूम अर्थ लाइव. Up now, if you all can see it, इस समय आपको देखिए ये बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पे कैन यू ऑल सी दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. यहाँ पे देखो पूरा बादल ही बादल. And this area must be experiencing a lot of rainfall. अगर रेनफॉल नहीं भी होगा तो यहाँ पे पूरा जितना पूरा स्काई होगा वो क्लाउडेड होगा पूरी तरह से. एंड व्हाट इज दिस एरिया? दिस पार्ट इज वेस्ट बंगाल एंड देन वी हैव ओडिशा ओवर हियर. यहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है. सेंट्रल पार्ट इज मध्य प्रदेश. सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज ओवर हियर. और फिर ये आपके सदर्न स्टेट्स हैं सारे. ठीक है. तो इस समय ये जो पूरा रीजन है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, यू कैन सी इट हियर. तो यहाँ पे इस समय रेनफॉल हो रहा हो. और इफ द साउथ ईस्ट विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द मेनलैंड, ऊपर की तरफ आने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपके घर पे बादल आ रहे हैं और यहाँ पे कहीं पे होगा अपना सब. ठीक है. तो इस पे आएगा और यही बारिश लेके आते हैं. Mumbai must be showing something. I don't exactly know about all the signs, but जैसे ये जो zones है, if you can see some colored part over here, they indicate heavy rains and high wind speeds. ये मैंने storm के समय ऑब्जर्व किया था, मुझे पता नहीं, बट देख के मैंने गैस यही किया था, क्योंकि द रीजन ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, दिस पोर्शन हल्का सा ब्लू, ये जो दिख रहा है, these regions indicate areas of zones of heavy rainfall. यहाँ बारिश ज्यादा हो. सो दिस इज हाउ द मेटेरोलॉजिस्ट दे प्रिडिक्ट द वेदर. वो देखते हैं हवा का डायरेक्शन क्या है, उससे हवा किधर जा रही है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोशन ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स किस डायरेक्शन में जाएंगे. अब ये है क्या, हमें पता है हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म, वाटर वेपर से ही फॉर्म होते हैं. और एक बार सारा पानी अगर गिर गया तो ये बादल भी खत्म हो जाएंगे. सो दे ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑन द डेंसिटी ऑफ दिस क्लाउड. अगर सारी बारिश हो गई तो फिर ऊपर की तरफ सिर्फ हवा जाए, क्योंकि पानी पूरा यहीं पे गिर चुका है. आई ऑल गेटिंग इट. एंड इफ द क्लाउड्स आर वेरी डेंस, से द लेयर ऑफ क्लाउड्स इज इन किलोमीटर्स, सारा मॉइस्चर नहीं गिर पा रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं क्या होता है हमें दिख रहा है आसमान में बादल, तो वो सिर्फ एक शीट ऑफ पेपर की तरह इतना पतला सा हो, नहीं, उस पूरे क्लाउड कॉलम की भी हाइट हो सकती है. ठीक है. तो वो जब तक पूरा पानी गिर नहीं जाएगा तो क्लाउड वो कीप होंगे. ठीक है. और कहाँ जाएंगे, ये तो अरेबियन सी है, या तो इधर से साउथ वेस्ट से अगर विंड्स ब्लो हो रही है इधर, ये पूरा मुंबई और इधर मध्य प्रदेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पूरा बारिश करते हुए ऊपर जाए.
ठीक है, और अगर बे ऑफ बंगाल से जा रहे हैं तो इधर जाएंगे। नाउ हाउ द हिमालयाज हेल्प अस, ये पूरा नेपाल और इधर क्या है, हिमालयाज का है, एंड दे आर वेरी हाई, कुछ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊंचे थे, तो बादल उसको क्रॉस नहीं करता, सो दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस माउंटेन। ठीक है, इसी से हम लोगों का ये जो पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा मानसून के कारण, इसीलिए आवर कंट्री इज वेरी गुड एट एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें एक तरह से नेचुरल इरिगेशन मिल जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। ये जूम अर्थ वाला देखा सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है ये समझ में आ गया सबको? हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। ठीक है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोस्फियर टू चेंज इनटू वेपर। ठीक है, एटमोस्फियर से अगर पानी इवेपोरेट हो रहा है तो पानी कैसे इवेपोरेट होगा, जब तक कि वो थोड़ी सी हीट अब्सॉर्ब नहीं कर रही। अनलेस एंड अनटिल इट अब्सॉर्ब सम हीट फ्रॉम द एटमोस्फियर, वो इवेपोरेट नहीं कर पाए, थोड़ी गर्मी उसे चाहिए पानी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जहां से उसे हीट मिल रही है वो एरिया, जाहिर सी बात है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोस्फियर। अब इस समय हम लोगों को जो एक गर्मी महसूस हो रही है वो क्यों हो रही है? ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, इट्स बिकॉज ऑफ द सेम फिनोमेनन। ठीक है, द हीट रिलीज टू द एटमोस्फियर वार्म्स द एयर अराउंड, द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, more air rushes to the center of the storm, this cycle is repeated। और जब बहुत सारी एयर आ जाती है, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, that is what causes heavy rain। The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। ठीक है, सेंटर में तो बहुत सारा लो प्रेशर है, बट आसपास की जितनी विंड आ रही थी वो उसी लो प्रेशर एरिया के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, दिस वन, ये जो सेंट्रल एरिया दिख रहा है आपको, यस सर। ये इसी के चारों ओर से स्टार्ट रिवॉल्विंग। दिस साइकिल इज रिपीटेड। हाँ ठीक है, ये इतना आप लोगों ने देख लिया। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो जब बहुत हाई स्पीड विंड्स एक एरिया के चारों रिवॉल्व करने लगती है और बारिश भी होने लगती है, हवाएं भी बहुत तेज से चलने लगती है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट साइक्लोन। ठीक है, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। ये इतने सारे फैक्टर्स क्या है, साइक्लोन बताएंगे कि साइक्लोन कितना ज्यादा वो खतरनाक होगा, डेंजरस हो। ठीक है, हाउ मच डिस्ट्रक्शन इज इट गोइंग टू ब्रिंग, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है तो ठीक है, डिस्ट्रक्शन लाएगा। जो कमजोर पेड़ होंगे, बहुत कच्चे मकान होंगे, दे माइट गेट डिस्ट्रॉयड, बट हाँ जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होंगे वो नहीं हो। पर अगर बहुत हाई स्पीड का है तो फिर थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि आप सपोज करो आपका घर है, द बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हाई विंड के साथ वैसे हम क्या देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियां उड़ रही, लेकिन सपोज अ होल ब्रांच ऑफ अ ट्री फेल और विंड स्पीड इतनी हाई थी कि वो ब्रांच भी उसके साथ उड़ गई। नाउ व्हेन दैट हैवी ब्रांच वुड कम इन फ्लोइंग अलोंग विद द विंड एंड इट बैंग्स द विंडो ऑफ योर हाउस, तो क्या होगा, घर नहीं गिरेगा बट द विंडो पेन कैन गेट डैमेज, कांच टूट सकता है, या हो सकता है कुछ लोहा अगर कमजोर हो गया तो इट कैन गेट अ बिट टर्न, या टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत डैमेज। योर कार वॉज पार्क्ड ओवर देयर, उसी पे गिर गया, कार का डैमेज हो गया। तो इस तरह से ये साइक्लोन डिस्ट्रक्शन लाता है। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग इट? यस सर। Let us see. Destruction caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore, even if the storm is hundreds of kilometers away. अब ये जो waves होती हैं, कभी ये सोचा कि नदी में तो हमें इतनी लहर नहीं मिलती, यस सर। बट समुद्र में क्यों मिलती? Why do we see waves in the sea? एक काम करना है, एक बकेट में थोड़ा सा पानी जब हम लेते हैं और उस बकेट को हल्का सा शेक कर दो तो पानी अच्छा खासा निकलेगा। यस सर। होता है ऐसा?
तो अर्थ जब रोटेट करता है तो पानी जो है वो हिलेगा, पानी उसके साथ हिलेगा। दिस इज व्हाट कॉजेज द सी वेव्स। और इन्हीं वेव्स को अगर हवा मिल जाए खूब जोर की तो ये वेव्स और बड़े हो गए। आर यू गेटिंग? वही ये बता, these are the first, ये strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. These are the first indications of an approaching cyclone. अगर हवा तेज आ रही हो, लहरें तेज आ जाए तो आदमी क्या कहता है? समंदर में आज तूफान आ जाएगा। वी आर गोइंग टू विटनेस अ स्टॉर्म इन द सी। और बहुत तेज हवा है तो आज समझ जाते सब कि आज चक्रवात आ सकता है, साइक्लोन। ठीक है, These चक्रवात क्यों कहते हैं? What do you understand by the word चक्र? A circle? साइक्लोन भी जैसे if you all have seen Lord Vishnu's चक्र, वो क्या होता है? सेंटर में एक होल है और उसके चारों ओर सब घूम रहा है। साइक्लोन वैसा ही दिखता है। That is why they call it चक्रवात. And what is वात? वात is a word used to represent the motion of air. कुछ एक लेवल पर, ठीक है? The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. ठीक है, अब इतनी तेज लहर इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता, उसमें स्विम नहीं कर सकता। The low pressure in the eye lifts water surface in the center. ठीक है, यहाँ पे पानी भी उठ जाता है, लो प्रेशर। और होगा क्या? The rising water may be as high as 3 to 12 meters. 12 मीटर ऑलमोस्ट समझ लो 36 फीट, इक्वल टू द हाइट ऑफ 2-story हाउस। जो हमारा सीलिंग होता है घर का, इट्स अराउंड 10 to 12 फीट। तो उस तरह के 3 फ्लोर के घर के बराबर तक पानी के वेव्स की हाइट हो सकती है। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल, पानी की दीवार के जैसे नजर आता है। मूविंग टुवर्ड्स द शोर, एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइन कोस्टल एरियाज। ठीक है, इसी के कारण जो कोस्टल एरियाज के पास का एरिया उसमें पानी आ रहा है। ठीक है, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. Soil erosion सबने पढ़ रखा हो। Yes, sir. उसका एक फैक्टर फ्लोइंग वाटर भी होता है, रनिंग वाटर भी होता है। Yes, sir. तो वही बात आप समझ लें। और प्लस सी वाटर सॉल्टी है। Yes, sir. अगर सॉइल आपका बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाए तो फिर पेड़ों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे हम सी वाटर नहीं पी सकते वैसे पेड़ भी नहीं पी सकते, प्रॉब्लम होगी। So it also reduces the fertility of the soil. Continuous heavy rainfall में further worsen the flood situation. और अगर इसी के साथ साथ बारिश भी हो रही तो पानी भी भरा है, बारिश भी हो रही है, तब तो फिर एकदम मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। क्योंकि आप ऐसे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कि हमारा जो भी वेस्ट वाटर होता है हमारे घर का Yes, sir. या किसी भी रिवर का, वो जाता कहाँ है? आसपास की किसी रिवर बॉडी में। जैसे इलाहाबाद का अगर बात करेंगे या कानपुर का बात करेंगे या वाराणसी का बात करेंगे, सो मोस्ट ऑफ द सीवेज इट फ्लोज इनटू द रिवर गंगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगर रिवर फ्लडेड है या फिर ये जो कोस्टल एरिया यहाँ पे सी ऑलरेडी फ्लडेड है, तो ये पानी कहाँ बह के जाएगा? सी में जाएगा। सी में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि पानी खुद ही उल्टा पड़ा हुआ है, तो वो पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है। अब बारिश से जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है वो कहाँ से फ्लो करेगा? नहीं फ्लो कर पाएगा और सिचुएशन खराब हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc, causing tremendous loss of life and property. और तेज हवाएं तो इतने सारे डिस्ट्रक्शन कर ही सकते हैं। ठीक है, ये भी सबने देखा है, सबको पता है। Tremendous loss means ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा। ट्रिमेंडस इज अ वर्ड सिनोनिमस विथ ह्यूज, इनॉर्मस, बिग, वेरी बिग। ठीक है, लार्ज, तो उसकी जगह आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रिमेंडस। ठीक है, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखो मैंने ये बताया था ना, yes, sir. देयर दे यूज द वर्ड हरिकेन एंड टाइफून। ठीक है, इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफून, वहां पे इसे ये कहते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो। अब एक चीज और होता है इसमें, टॉर्नेडो ये क्या होता है? सबने देख रखा होगा मूवीज में, Yes, sir. जो खूब सारी हवा जब लैंड के ऊपर एक साथ जैसे Yes, sir, गोल yes. गोल घूमने लगती है,
वो होता है टॉर्नेडो। The cyclone formed in water and tornado formed in land. हाँ, समझ लो ऐसे ही कुछ एग्जैक्ट रुद्र ने Sir, बोला बताया। था धूल मिट्टी से। हाँ, अब वो जो बहुत तेज एयर है, हवा वही डैमेज कर सकती है लैंड एट ऑल प्लेसेस। इट कैन अप्रूव ट्रीज, इट कैन डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इस तरह से। लेट अस वॉच दिस वन। Hello friend, come on here. For example, such phenomenon which happens, which is not exactly like a cyclone, but something of similar sort, and this is called a tornado. So what's a tornado? It is also like a high-speed wind, but a little different than a cyclone. So as you can see in the picture, how does it appear to? It looks like a cone, the shape of a cone. So it is a dark funnel-shaped cloud. So this is nothing but a cloud, right? And it is in the shape of a funnel. This is the shape of a funnel, like a cone. You see, it's like broad at the top, and then it is quite narrow at the bottom. So that's how it is. And its diameter can range from a few meters to even a few kilometers. So it can be at a very smaller range, or it can be huge. So they travel at extremely high speeds, and that is how they are capable of causing huge damage. So basically, how are these? It's like how you have a spinning top. So it just spins on the ground, right? In a similar way, these tornadoes, they are like winds. They are actually clouds, but they have winds which is like moving at really high speeds. And then this entire thing, this entire funnel-shaped cloud which you are seeing here, that entire thing travels from the sky to the ground with such high speed. And as it comes near the ground, what happens is it's constantly rotating as well. So when it comes near the ground, all the dust, dirt, sand, etc., everything, all the dust, dirt, sand, etc., everything enters this funnel. So everything enters from the bottom part, because it's all oval. At the center, it's the same concept, right? The center is going to be hollow. So everything, dust, dirt, everything enters inside, and they all come out from the top. So basically, wherever you have this tornado, you see a lot of dust at the top of the tornado, and since it is moving with a very high speed, all the objects that it encounters, everything is thrown out from the top. So this tremendous high speed causes destruction to any object it encounters, whether it is a building, whether it is a house, or whatever it is. It can spoil and it can destroy that. So let us look at the structure of a tornado in more detail. This is how it looks like. So it might appear like a softy in this picture, but actually this is also the shape of tornado. So at the bottom of the tornado, this is called the funnel of the tornado, and this is how the top is like. So you see all the dust, dirt, everything, because it falls near the ground. So when it comes to the ground, dust, dirt, everything enters inside, and everything is thrown out from the top. So when you look at the top of the tornado, it is all dusty and dirty. So that's how it's like a cloud of dust above the tornado. So that's how it looks like. So sometimes these tornadoes can form inside a cyclone also, because cyclone is what? It is nothing but a low pressure area which is being created, and then winds are rotating about it. And what is tornado? It is also like rotating winds in the shape of a funnel, and then it is actually reaching the ground basically. So sometimes the cyclone is so huge that inside the cyclone you also have tornadoes. The tornadoes are not very common in India, but it is quite common in other parts of the world, and this can also cause huge destruction. Thank you. Please visit www.examflow.com. कुछ ऐसा ही है एग्जैक्टली हमारे कंट्रीज में तो ऐसा ये नहीं दिखता है. इट्स कॉमन मोर जैसे इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी जो सेंट्रल पार्ट है और नीचे का पार्ट है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम. ऊपर के पार्ट में क्या है? कनाडा है. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर वर्ल्ड मैप पे किसी ने देखा हो तो कनाडा इज अ कोल्ड प्लेस. ठीक है.
एंड द पार्ट्स नियर कनाडा, जो अमेरिका के हैं, जहाँ थोड़ा सा माउंटेन वाला रीजन है, दोज ऑल्सो आर कोल्ड. जैसे जैसे यू मूव लोअर इन द लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट और एंड क्लोजर टू द सी, क्लाइमेट उतना हॉट मतलब उतना कोल्ड नहीं रहता सर. ठीक है, तो उन एरियाज में ये जो टॉर्नेडो है ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अक्सर लोग देखते हैं. इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड. फनल मतलब जिसे हम कहते हैं कुप्पी. दिया है इट कैन रेंज, बट जो एक प्रॉपर डिस्ट्रक्शन वाला टॉर्नेडो होता है उसमें 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. मतलब वो व्हीकल्स को, कार्स को भी अपने साथ बचा सकता है, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है. एक कार जिसे हम धक्का नहीं दे पाते, वो सोचो उसमें जमीन के ऊपर उठ के उसमें उड़ रहे. सो इट इज डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस. ठीक है, अब है क्या कि ये डार्क फनल शेप क्लाउड होता है दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. ठीक है, द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट. ईस्ट कोस्ट मतलब हमारा ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड द लोअर पार्ट, ये पूरा क्या है, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत है. ठीक है, अब द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स. वेस्ट पे क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात. महाराष्ट्र के नीचे कौन सा स्टेट है, कर्नाटका, गोवा, केरला. इधर आपको उतना नहीं सुनाई पड़ेगा जल्दी कि स्टॉर्म या साइक्लोन कोई है, बट हाँ ओडिशा एंड आंध्रा, दैट जोन इज अ बिट मोर फ्रीक्वेंट, वहां अक्सर आपको सुनाई पड़ेगा न्यूज. हाँ, वेस्ट बंगाल भी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स साइक्लोन्स में क्या होता है. थोड़ा सा पहले टोर्नेडो के बारे में देखें तो डायमीटर ऑफ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर. द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट, ये धूल को खींच लेता. डेब्रीज मतलब मलबा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, छोटे मोटे सामान, जैसे सपोज कीचड़ इज अ डिफरेंट थिंग. डेब्रिस का मतलब हो गया जैसे कुछ टूटा फूटा सामान आपने रोड पे फेंक रखा है, कुछ कबाड़ जो वो भी इसके साथ उड़ जाता है, हल्का कबाड़. ठीक है, एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप. Here are a few accounts of survivors of tornadoes from Discovery Channel, Young Discovery. I saw the cloud coming and tried to take shelter inside. But as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. अब आप घर में हैं, आप देख रहे हैं a tornado is coming towards you and you try to close the door. आप अपने घर में तो दरवाजे ही खिड़की बंद करेंगे, बट अगर आपका पूरा घर ही उड़ जाए, अब आप क्या करेंगे. तो यही कहना चाह रहा है. आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स. आसपास के खेत में घर के टूटे हुए टुकड़े वहां पहुंच गए. ठीक है, वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस. स्प्लिंटर्ड मतलब क्या हो गया, अंडरलाइन दिस वर्ड, फाइंड आउट द मीनिंग. ठीक है, ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स. ठीक है, वहां पे पोल्ट्री फार्म होता है तो नॉर्मली लोग ये आपका जो गोट्स है, चिकन्स है, दे टेम दोज एनिमल्स. ठीक है, विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक लाइक दे हैड बीन स्किन्ड. स्किन का मतलब समझ रहे कि उनके बॉडी का जो स्किन है, हेयर का जो लेयर है उसे पूरा निकाल दिया. ऐसे इतनी केस हमारे. अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज. अब कैसे बचा जाए, तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग बेसमेंट में बना, ऊपर का स्ट्रक्चर उड़ जाएगा बट जमीन तो उड़ा नहीं ले जाएगी, और इसमें कोई खिड़की नहीं होती. और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच. होता क्या है कि आदमी उड़ के, इसमें हो सकता हो आदमी ना उड़े बट इसके साथ जो मलबा घूम रहा हो. अब आपका हाउस स्ट्रांग है, वो उड़ा नहीं, बट एक उड़ती हुई कार आके आपके घर के दीवार से टकरा, तो इट्स गोइंग टू कॉज सम डैमेज. कार भारी होती है, दीवार तोड़ के अंदर आ सकती है. ठीक है, इसमें इससे प्रॉब्लम होती है.
ठीक है, वन हैज टू बाउ डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। हाँ ऐसे कुछ, ठीक है। सर की चोट ही सबसे पहले बचाई जाती है। इफ यू ऑल सी व्हाई आर पीपल आस्क्ड टू वेयर अ हेलमेट, बिकॉज इन 10 एक्सीडेंट्स इफ योर हेड इज सेफ, से 8 out of 10 times you will survive। अगर सर बच गया है तो 8 बार ऐसा होता है कि आदमी बच जाता है, unless and until the lower part of your body has been crushed completely। if your brain is safe you are most likely to survive, इसीलिए हेलमेट कराया है, ठीक है। हाँ, बट इफ अ ट्रक और समथिंग रन्स यू ओवर, या नीचे का पूरा हिस्सा ही डैमेज हो जाए, तब बात अलग। बट सर को सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यही ये कह रहा है, प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। अब इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या है साइक्लोन के समय? अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, कि आपको पता लगता रहे कब साइक्लोन आ रहा है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि अब साइक्लोन आ रहा है तो आप क्या ही सेफ्टी मेजर लोगे? तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज, प्रॉपर ऐसे एरियाज या जोन्स हमें बनाने पड़ेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जो कि साइक्लोन की हवा को झेल सके। अगर कोई उड़ता हुआ मलबा या पेड़ आए तो उसके भी शॉक को झेल सके, और इट कैन कीप द पीपल सेफ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। अब लोग जो है जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं ना इवैक्यूएशन हो रहा है, लोगों को वहां से हटा के सेफर एरियाज में लाया जाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए और आगे क्या है, दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ, वो हो जाएगा। आई ऑल्सो नो। Okay, thank you class, that's it for today. Wait for the next teacher to come.